Thanks for joining. It's me. आप कहाँ से हैं तुषार जी? I'm from City Beautiful Chandigarh only. ओह वाह, Yeah, कहाँ कौन that's से why. सेक्टर से? I come from Sector 49. ओके ओके ओके, तभी आप तरविंदर कौरशी को जानते हैं मेरे Yes, ख्याल तरविंदर से। मैम हमारे बेसिक के ट्रेनर रहे हैं. बेसिक। बेसिक के ठीक है। एडवांस्ड के भी ट्रेनर तरु मैम रहे हैं. फिर साइको हमने गुरुप्रीत सर से किया, सॉरी योगा श्वेता मैम से. अच्छा, श्वेता मैम से, ठीक है Yeah. ठीक Hello, गरिमा जी. Hi, Harry. Hi. How are you? I would love to see your lovely faces, those who have not come on screen. Hi, Vidya. Hi, Trisha. How are you? Yeah, I'm good. How are you? I'm doing great. Thank you so much for joining, Vidya. Yeah. Lovely, lovely. Great, great to see you. Okay, good. I find the screen colorful actually when people come on screen. Hi, Shaina. Hello, How are you, Shaina? Thank you so much for joining. I'm good, thank you. Great. Where are you from, Shaina? UP. Oh, that far. How do you get to know about this Yeah, program? I don't know, maybe through some WhatsApp group, Okay. some book reading group it was, yeah. Oh, this digital world is such a lovely thing. People from far off places get connected easily. Yeah, Love to have you here on our platform. Thank you. thank you. Hi, everybody. Where are you from, Welcome to today's session. Trisha? Sorry, Where are you from? I am from City Beautiful Chandigarh. Okay. Yeah, I'm from Bangalore. Bangalore. Yeah. Garima, here, Rudra, with the name of Rudra. She stayed for a long time in Bangalore. Great, great. Good to connect again. Yeah, good to see your face, Shaira. Lovely. Hi, Manzil. Hello, Tushar. Good evening. Good evening. How are you? Long time, I feel, on this platform. Especially came for you. Thank you so much. So much for this love. Thank you. Great. Welcome. We would love to have our, members who have been with us, who have connected with us for quite a long time. So I'm waiting for more people to join in, and then we can start with our workshop or chakra awareness. And I hope you all have heard about this word chakra. Yes, yes. Sure. Great. So we would love to talk about it. हालांकि हमारे पास 1 घंटे का ही समय है जो कि तो आप स्टार्ट करो तो साजिद फिर काफी yeah, सब लोग हैं। Monica ji, Sunaina, and some members who have been with us, like जो long standing members हैं हमारे. आप अश्विंदर जी हैं, सपना जी हैं, शशि आंटी has just joined. नमस्कार शशि आंटी, कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्ते बेटा। जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच शशि आंटी. आपका आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है. And I would request other people to, अच्छा, you can mute yourself. Those who wish to speak, they can have their hand raised and then they can speak up. Welcome, Shashi Auntie. Thank you so much for joining. थैंक यू बेटा। All right. 1 minute, I'll just have. All right. I hope you all can see my screen. Is my screen visible to everyone? Yes. Right. All right. So, welcome. I warmly welcome everyone with the folded hands on this platform of InSync Mindset. So, today we're going to talk about chakra awareness and chakra meditation. Um, let's start with chakra, knowing chakras. So, when we talk about chakras in our body, तो chakras हमारे बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो कि एक व्हील की तरह, जैसे चक्र है, चक्र के नाम से ही आप समझ लो व्हील, जैसे व्हील होता है उसी शेप का चक्रास होते हैं.
और वो हमारी बॉडी में सेल्फ अवेयरनेस का, बैलेंसिंग का, इमोशंस का और फिजिकल एनर्जीज का, मेंटल वेलबींग का भी सीट होता है। नाउ दिस चक्रा हमारी बॉडी में जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग लेवल पे, स्पाइन हमारे टॉप क्राउन से लेके हमारे रूट तक, ये एक ही लाइन में अलाइन होते हैं। ऑल चक्रास आर अलाइन, लीनियर पोजीशन में सभी अलाइन होते हैं। और जो चक्रास है वो हमारी एनर्जी बॉडी का पार्ट होते हैं, राइट। हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, सबको पता है 72,000 नाड़ियां हैं। और वो सारी 72,000 नाड़ियां जो 7 प्राइम चक्रास हैं उनसे कनेक्टेड होती हैं। हालांकि 114 या 118 टोटल चक्रास है हमारे, जिसमें से कि 12 चक्रा जो हम प्राणिक हीलिंग पे भी काम करते हैं, और 7 जो मेजर चक्रा है जिसके बारे में सब लोग सुना हुआ है मोर और लेस सबने, तो उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है क्योंकि वो मेजर चक्रास कंसीडर किए जाते हैं। और उस पर अगर कहीं भी डिसअलाइनमेंट या इम्बैलेंस हो जाता है तो वो आपकी बॉडी की फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग। कर दिया तूने पूरा आगे की मम्मी। I would request people to not to unmute. If you wish to speak something, I would request you have your virtual hand raised so that you can speak up in between if you wish to. Thank you. Thank you, Gurpreet. Thank you, Sunaina. Thank you, Sankita ji. Thank you, Sapna ji. Sunaina, if you are listening, can you please reach out to Raj Bhanot or Buaji in the group? I'm getting a constant call from she's trying to get into the group. So you may just have a word with her. What kind of problem is she facing? Yeah, sure. Thank you. Just Thank you so much. Thank you, Sapna ji. Thank you, Gurpreet. Thank you, Shwinder ji. So these chakras, which are aligned, which are placed, जी which are जी तुषार जी, एक मिनट आपको बोलना चाहूंगी, आपकी स्क्रीन प्रॉपर नहीं है, साइड में आपका डैशबोर्ड भी दिखाई दे रहा है। one moment, I'll just see to that. Okay. Is that okay? Thank you so much. यस, अब सही है, अब Thank you, सही thank you, thank you so much, Sapna ji. थैंक यू। मैंने कहा वही विजिबल अच्छा नहीं लग रहा था तो Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Right. So Naina, please reach out to them. I'm getting a call. Probably she's facing a trouble. अभी वापस चेंज हो गया। Yeah, just a moment. Those from the InSync mindset, Sunaina or Sheetal. Sheetal, if you can, because Buaji is also in your group. You can please have a word with her if Sheetal is there in the group. I don't have personal number of her actually. I'm just locating it. Yeah, just if you can connect with Sheetal and Sheetal may pass it on to you. Probably she's facing a trouble in connecting or getting into. आज Yeah, ना I got her Zoom number. I'll just call her up. मांग रहा है। Yeah, thank you. I'll just Please, call her Sapna up. ji. आज आपका जूम कनेक्ट करने में मुझे भी टाइम लग गया क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर पा रही थी, फिर पासवर्ड डाल के फिर ज्वाइन कर पाई। Oh, I don't know. Okay, is that so? I hope others have got into this workshop easily and didn't face any problem. नहीं, आज पासवर्ड डालना पड़ा I है was उसको, asking काजल for passcode. पासवर्ड हाँ डालना पड़ा है। पासवर्ड डालना हाँ All right, all right. I'm not sure what happened to, but thankfully, if you have got the password and you could get into this, thank you. That's a God's grace that you all could manage to get into this workshop. Great. So we were talking about chakras और चक्रा की प्लेसमेंट जो है हम उसके बारे में, सारे चक्रास की प्लेसमेंट के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे कि हमारे क्राउन और रूट चक्रा, मतलब क्राउन फ्रॉम द टॉप एंड द रूट चक्रा एट द बेस ऑफ योर स्पाइन जो प्लेसमेंट है। बट बिफोर दैट और बिफोर वी प्रोसीड, चक्रास क्यों, मतलब हमें क्यों जानने की जरूरत है, चक्रा मेडिटेशन क्यों हमें करना है, या चक्रा अवेयरनेस के बारे में क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग हम फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत अवेयर रहते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी में ऐसा ना हो, हम एक्सरसाइज करें, हम इतना सुंदर दिखे, हमारे लंग्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लिवर के लिए क्या खाना चाहिए। तो फूड हैबिट्स या लाइफस्टाइल को लेके हम बड़े सजग रहते हैं, बड़े कॉन्शियस रहते हैं। But I would say beyond physical body, which is a visible body, there is a mental and emotional body and energy body as well. तो हमें
ये इनविजिबल बॉडीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो बहुत इम्पैक्ट एक पावरफुल वे में हमारी फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट कर रही होती है। तो चक्र जो है वो एनर्जी बॉडी का एक पार्ट है। एनर्जी बॉडी जो है हमारे जैसे ऑरा जो होता है हमारी फिजिकल बॉडी से कुछ इंचेस में स्प्रेड होती है। तो जब आपकी एनर्जी बॉडी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट या इम्बैलेंस में आती है, तो आपके जो चक्रास जो है वो डीएक्टिवेट या इम्बैलेंस होते हैं और फिजिकल बॉडी में वो एलिमेंट्स जो है मैनिफेस्ट हो जाती हैं। Is the screen visible? Because I could not see the screen on the other system. Yeah, thank you so much. Thank you. So चक्रा मेडिटेशन जो फोकस करता है हमारे बैलेंस करता है हमारी एनर्जी बॉडी को, और मेनली देयर आर 7 चक्रास अलोंग द स्पाइन में टॉप टू बॉटम से 7 चक्रास होते हैं, और हर एक चक्रा का एक अपना इमोशनल पर्पस होता है, फिजिकल पर्पस होता है, उससे डिफरेंट इमोशंस जो हैं वो रिलेटेड होते हैं, और स्पिरिचुअल उसका एक एस्पेक्ट रहता है। तो मेडिटेशन या चक्रा मेडिटेशन है हमें हेल्प करता है हमारे चक्रास को बैलेंस करने में और एक्टिवेट करने में। सो व्हाई शुड वी डू चक्रा मेडिटेशन भी, क्यों करना है? एज आई जस्ट सेड कि चक्रा मेडिटेशन जो है करने से हमारी एनर्जी बॉडी जो हील होती है। नाउ टू अंडरस्टैंड एनर्जी बॉडी आई वुड से कि जो आप में कोई फिजिकल एलिमेंट आपकी बॉडी में, हार्ट में, नीज में, थ्रोट में हेडेक हो रहा है, या स्टमक एक हो रहा है, या आपकी बाजू में कुछ प्रॉब्लम है, लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो है आपकी एनर्जी बॉडी के इम्बैलेंस होने से फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज यू कैन नॉट सी एनर्जी बॉडी, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो एनर्जी बॉडी जब बिल्कुल खराब होती है तो वो मैनिफेस्ट कहाँ जाके होती है? फिजिकल बॉडी में, जहां आपको जाके बीमारियां दिखने लगती हैं। तो जब आपकी फिजिकल बॉडी खराब हुई है तो ये क्लियर सिम्टम है कि आपकी मेंटल और एनर्जी बॉडी दोनों जो है डिजास्टरली खराब हो चुकी हैं। उस पे वर्क करने की जरूरत है, आपकी मेंटल बॉडी यानी कि थॉट में, आपकी एनर्जी बॉडी यानी आपके चक्रास में। दैट्स हाउ यू कैन वर्क। जब आप अपनी मेंटल बॉडी या एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली सेट होनी शुरू हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब चक्रास पे काम करते हो, आपके जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, हर एक चक्रास जो है डिफरेंट ऑर्गन से रिलेटेड होता है और डिफरेंट इमोशन से स्टक होता है। हर एक चक्रा में डिफरेंट इमोशंस होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को ऑपरेट कर रहा होता है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स बॉडी में आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई ना कोई चक्रा उस जो बॉडी से रिलेटेड है, उस ऑर्गन से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस में चला गया है। और चक्रा मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है अबाउट योर सेल्फ, अबाउट पीपल अराउंड यू, अबाउट योर ओन थॉट्स, अबाउट योर ओन इमेज, अबाउट द पीपल, एंड अबाउट what you seek in your life. And another is when you balance or activate your chakras, you get physical and mental well-being. Why you get physical and mental being? जैसे मैंने बताया कि जब आप एनर्जी पे काम करते हो तो उसका ही इम्पैक्ट आपका मेंटल और फिजिकल बॉडी पे आता है। तो अगर किसी की फिजिकल बॉडी कहीं खराब है तो जो चक्रा मेडिटेट करते हैं या चक्रा हीलर्स होते हैं उनको समझ आता है कि इसके इस चक्रा में प्रॉब्लम है। We will talk about it also in the session. Now, benefits of chakra meditation. जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो जैसे कि अभी क्यों करना है, क्यों करने की जरूरत है, तो जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है इसमें कहा जाता है कि जितनी भी बीमारियां उसका रूट कॉज जो है ना स्ट्रेस माना जाता है। स्ट्रेस गिव बर्थ टू मल्टीपल डिजीजेस, राइट? ये सब अग्री करते हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और ये एलोपैथी में बहुत कॉमन सी बात है। तो सबसे बेस्ट बेनिफिट जो चक्रा मेडिटेशन का है, ये आपकी स्ट्रेस एंजाइटी जो है उसको ओवरकम करता है, उसको कट डाउन, कट शॉर्ट या दबाता है या उसको हील करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्लीप एंड कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि स्लीप की जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत लोग आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत लोग फेस कर रहे हैं, तो ये स्लीप पे भी हेल्प करता है व्हेन यू मेडिटेट। ये आप तब भी समझोगे जब आप जैसे कोई भी पूजा पाठ भी करते हो, कोई चैंट करते हो, मंत्र करते हो, या वैसे भी नॉर्मल मेडिटेशन करते हो, यू माइट हैव रियलाइज्ड कि देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ, देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ। जब आप कुछ भी चैंट कर रहे हो, आप भजन सिमरन कर रहे हो, आप नेचर में भी वॉक कर रहे हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हो, खुद फील करते हो कि मेरे को एक वेल बींग, एक मेंटल वेल बींग या इमोशनल वेल बींग या फिजिकल वेल बींग भी फील होती है। तो जब वो छोटे से अभ्यास से 2 मिनट 5 मिनट के अभ्यास से अगर इतना फर्क पड़ता है, तो अगर हम कंसिस्टेंटली एक लेवल पे करते रहे
तो आपका ऑरा एनर्जी ऑलरेडी हील रहती है. सो वंस योर एनर्जी इज हील्ड, इट डजंट लेट द नेगेटिविटी गेट इनटू योर फिजिकल बॉडी. तो जो लोग जैसे प्राणिक हीलर्स होते हैं या रेकी हीलर्स होते हैं या एनर्जी हीलिंग पे काम कर रहे होते हैं, वो आपके ऑरा को, अपने ऑरा को या एनर्जी को प्रोटेक्ट रखते हैं. और सबसे एक बेसिक बेसिक टिप जो हमें हमारे गुरुज या कोचेस बताते रहते हैं, बेसिक टिप होता है आपकी एनर्जी को हील रखने का या प्रोटेक्टेड रखने का, सॉल्ट वाटर बाथ. तो सॉल्ट वाटर बाथ आपको ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, नॉट एवरी डे, नहीं लेना चाहिए. जब आप किसी ऐसी जगह नेगेटिव माहौल से आ रहे हैं या नेगेटिव कुछ थॉट चल रहे हैं आपके बारे में, आप देखना अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ लेते हो तो इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है, आपका मेंटल स्टेट शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज वो एनर्जी सारी निकल जाती है. सॉल्ट जो है नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके निकाल देता है बॉडी से. इसीलिए लोग सॉल्ट वाटर का बॉल भी रखते हैं या रॉक सॉल्ट घर में प्लेस करते हैं, बिकॉज अगर कोई भी नेगेटिविटी आसपास से आ रही है तो वो अपने आप उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है एंड दे कीप शिफ्टिंग इट, उसको चेंज कर देते हैं. देन इट ऑल्सो बूस्ट योर एनर्जी एंड मोटिवेशन, क्योंकि एनर्जी पे ही काम कर रहा है. और जैसे मैंने बताया कि ये आपके इमोशंस, हमारे जो चक्रस हैं, हमारे डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है. इस वजह से हमारे ये इमोशनल स्टेबिलिटी को बिल्टअप करता है, हमारे इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को स्ट्रेंथ देता है. एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स और एनहांसेस योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. लेट्स कम ऑन टू 7 मेन चक्रास, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और सब्जेक्ट है. I would like to start with how I got connected with 7 chakras, या चक्रा वर्ल्ड से मेरे को कब समझ आई. So it started back in 2017 I feel, जब मेरे को एक प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, मेरी लंग इन्फेक्शन डायग्नोज हुई थी. लंग इन्फेक्शन जो हुई थी वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन थी ऑफ द डिस्टॉर्टेड मेंटल एंड एनर्जी बॉडी. जो मेरी मेंटल और एनर्जी बॉडी डिस्टॉर्ट हो गई थी, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, मतलब कहीं भी हो सकती है, प्लेस हो सकती है, लेकिन वो जो मेरे केस में था तो मुझे लंग इन्फेक्शन हुआ था. तो जब मैंने लंग इन्फेक्शन को हील किया, एलोपैथिक ने अपना काम किया, होम्योपैथिक अपना काम करने लग गई, तो मुझे एक अनदर वर्ल्ड के बारे में पता चला, विच इज एनर्जी वर्ल्ड. सो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जब हम एलोपैथी के पास जाते हैं तो बार बार चीज़ें वो रीअकर हो ही रही हैं, होती रहती हैं. और जब हम होम्योपैथिक अपना काम कर रही है एनर्जी बॉडी पे, मुझे बहुत समझ अच्छे से समझ आई कि जो सारा सिस्टम है वो साइकोसोमेटिक, आपके इमोशनल और आपके मेंटल जो थॉट्स है क्लटर हो जाते हैं, वो फिजिकल बॉडी पे कहीं ना कहीं आपको पेन क्रिएट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आई नीड योर अटेंशन, मुझे तुम्हारी अटेंशन की जरूरत है. हमारे बॉडी पार्ट्स, आप बात करते हैं, जब कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर लव, आई नीड योर एक्सेप्टेंस, मतलब मुझे ध्यान दो. बहुत सिंपल सी बात है. सो दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड कि मेरे, क्योंकि फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोचेस, जैसे रेनू मैम से मैंने पहले डिकोड विद इन करना शुरू किया और रेकी सीखी, तो समझ आई कि क्यों लंग्स में प्रॉब्लम कहाँ, क्यों आ रहे हैं. तो उन्होंने मुझे डाइव डीप कराया कि क्या तेरे को क्यों लंग्स में वो प्रॉब्लम जाके आई है, कि क्या तेरे को ऐसे थॉट्स, इमोशंस तेरे कहाँ पे डिस्टॉर्ट हुए हैं जो तेरे लंग्स में जाके स्टक कर गए, और वो इन्फेक्शन क्रिएट हुई है, और वो बताना चाह रही है कि आई नीड योर अटेंशन, मुझे मुझे निकालो यहाँ से. वो थॉट्स हैं, आपको लेट गो करने होते हैं, जो एक आपके ऑर्गन्स में जाके स्टक कर जाते हैं. तो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस हीलिंग वर्ल्ड. सो आई लर्न, रेनू मैम से मैंने डिकोड विद इन सीखा, मैंने रेकी सीखा उनसे. देन रीरी त्रिवेदी मैम जो हैं, बहुत उनको लोग सुनते होंगे, आई एम श्योर जानते हैं, तो उनसे हमने मॉड्यूल, लाइफ मॉड्यूल पार्ट 1 लेवल 1 किया, जिसमें मैम ने चक्रा के बारे में और डिटेल एक्सप्लेनेशन दी, हमें ईएफटी समझाया, हमें होपोनोपोनो, एक डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड हमें इंट्रोड्यूस हो गया कि ये क्या चीज़ें हैं जो अलग लेवल पे काम कर रही हैं. एंड वी स्टार्टेड वर्किंग. I will not say that I'm an expert of this field because I am still learning. मैं एक लर्निंग स्टेज में हूँ, मैं भी एक इन्फेंट बच्चा ही हूँ अभी, जो लर्न कर रहा है. ये नई नई चीज़ें मुझे पता चली. आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग ऑल्सो, आई स्टार्टेड इम्बाइबिंग एंड शेपिंग माई वर्ल्ड डिफरेंटली. जो मैं पहले एक कहीं ना कहीं ब्लेमिंग या कहीं एक विक्टिम मोड से या एक डिस्टॉर्टेड मोड से ऑपरेट हो रही थी, वो थोड़ा सा विक्टोरियस शेप अप हो गया. और जब मैंने रियलाइज किया कि सारी जो चीजें हैं वो चक्रस के कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने से या एनर्जी बॉडी के इम्बैलेंस होने से
ऑपरेट हो रही है. सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. सो लेट्स कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दीज चक्रास ऑपरेट, और कैसे ये आपको आपकी लाइफ में शेप कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं. तो फर्स्ट चक्र हमारा जो रूट चक्र है, रूट चक्र की प्लेसमेंट जो रहती है, दिस इज इन एट दी बॉटम बेस ऑफ द स्पाइन. स्पाइन के जहाँ पे बिल्कुल स्पाइन खत्म हो रही है, बेस है, वहां पे रूट चक्र हमारा इसकी पोजिशनिंग होती है. और रूट चक्र जो है उसका कलर जो है उस चक्र का, दैट इज रेड इन कलर. गिव मी अ मिनट, वन मोमेंट. या, इज दैट विजिबल नाउ? So Naina, I'm again getting a call from Buaji only. Please, if you can check with her. तुषार, She I was, just I she, tried calling her actually. उनका ना मेरे ना व्हाट्सएप से न्यू नंबर नहीं लग रहे हैं. देयर सम हाँ, रिस्ट्रिक्शंस. I'll दूसरे tell नंबर you. से कॉल करें तो लग नहीं रहा है. Oh, you do one thing. You just share the passcode. Probably she's not getting. She's not. She must be trying to get into this workshop, and she's not getting the access, I feel. उनको भी नहीं मिल रहा होगा. उनको सिर्फ पासकोड शेयर कर दो. आप उसको मैसेज कर दो उनको व्हाट्सएप पे. आप इनसिंक माइंडसेट पे भी ना मैसेज ड्रॉप कर दो कि पासकोड ये है, आप उससे ज्वाइन कर लें. मैं कर देती हूँ. हाँ थैंक यू जी. सो मच. थैंक यू सुनैना. थैंक यू. सो लेट्स टॉक अबाउट रूट चक्र. रूट चक्र जो हमारा बेस ऑफ द स्पाइन में पोजीशनिंग है इसकी, और इसका कलर जो है इस चक्र का रेड होता है. नाउ दिस चक्र रूट ना, तो इसका एलिमेंट जो है अर्थ होता है. अर्थ क्या देता है हमें? ग्राउंडिंग देता है. तो रूट चक्र भी हमें लाइफ में, इस वर्ल्ड में ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी दे रहा होता है. हमें एक सेफ्टी दे रहा होता है, सिक्योरिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा. अगर ये चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया, तो आप देखोगे जो भी लोग जो जो वेल्थ इशू से, फाइनेंशियल इशू से झुलस रहे हैं, या जो इनसिक्योर है लाइफ में, या उनसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कैरी नहीं हो पा रही है, जो ग्राउंडेड नहीं है अपनी रूट से, उनके रूट चक्र में इम्बैलेंस है. उनको जरूर ये दिक्कतें आ रही हैं. और जो लोग बहुत वेल्दी, प्रॉस्परस, एफ्लुएंट, अबंडेंट हैं, रूट से कनेक्टेड है अपने, वो लोग जो सेफ्टी है, जिनकी लाइफ में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उनके रूट चक्र बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. अब बहुत लोगों की क्वेश्चन आते हैं कि रूट चक्र यार, वो उसका तो ठीक है, उसने तो कभी मेडिटेशन ही नहीं की, उसने तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया मेडिटेशन, इस वर्ल्ड को ही नहीं वो जानता, उसका कैसे एक्टिवेटेड है? तो ये लोग, हम तो अवेयरनेस में हैं, ये लोग अनअवेयर होकर भी ऐसे टास्क कर रहे होंगे. जैसे कि चक्रस को एक्टिवेट करना है, तो उसका एक ही तरीका नहीं है मेडिटेशन, उसके बहुत सारे तरीके हैं. आप उसको, आप जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग जिम हिट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो दान कर रहे हैं, जो बहुत टॉकेटिव, बहुत आउटस्पोकन है, जो अपने इमोशंस को लेट गो कर लेते हैं, राइट, जो लोग अपने क्लियर है फोकस के बारे में, ये सब लोग अननोइंगली भी ऑलरेडी अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं. दिस इज वन एस्पेक्ट. एंड अनदर जो अपने संचित कर्मा को लेकर आते हैं, जो कर्मा को लेके आ रहे हैं, वो भी ऑलरेडी, क्योंकि उनको ये निर्धारित है कि इस जन्म में उनको ये चीजें अबंडेंट फॉर्म में मिलेंगी, तो वो उनको मिलती भी हैं, और उनकी चक्रस एक्टिवेटेड, रूट चक्र उनका एक्टिविटी रहेगा, राइट. प्रॉब्ली दे वुड बी डूइंग सर्टेन थिंग्स, ऐसी टास्क, ऐसी एक्सरसाइजेस ही कर रहे होंगे कि रूट चक्र उनका अबंडेंट में रहेगा. नाउ हाउ टू एक्टिवेट? अब मैंने बोला कि इसका एलिमेंट जो है अर्थ रहता है, तो जितनी भी एक्टिविटीज आप ग्राउंडिंग से, अर्थ रिलेटेड, लाइक वॉक इन नेचर, गेट क्लोज टू नेचर, एक्सरसाइजेस करो, स्टेबल एंसेस्टर, अपने रूट से जुड़ो, फैमिली से जुड़ो, अपने पेरेंट्स से जुड़ो, जितने रूट से कनेक्टेड रहोगे उनका रूट चक्र उतना ही एफ्लुएंट और अबंडेंट रहेगा, राइट. और रूट चक्र जो है वो पोजिशनिंग आपकी बताता है, आपका स्टेबिलिटी बता रहा है ना, तो वो बता है आई एम. when we talk about root chakra, so it represents I am, मैं क्या हूँ. So this is how you can know about root chakra और उसकी imbalancing, balancing और उसके activation के बारे में. Now moving on to sacral chakra. sacral chakra की जो placement है वो हमारे navel से 3 inches नीचे होती है, और इसका कलर जो है ऑरेंज होता है. हर एक चक्रा का अपना ना एक बीज मंत्र भी रहता है. बीज मंत्र जो है एक अक्षर होता है, वन सिंगल अक्षर का होता है. और वाई ये हर एक चक्र का अलग बीज मंत्र रहता है, क्योंकि हर एक चक्र हर एक देवी या देवता को कनेक्ट करता है, और हर एक देवी देवता जो है वो अलग इमोशन रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए उनका एक बीज मंत्र भी हर एक चक्र का अलग होता है, विच प्रॉब्ली वील नॉट गेट इनटू इन दिस सेशन, मे बी सम अदर टाइम. मैं लेकिन उसको थोड़ा सा टच बेस जरूर कर दूंगी. जैसे कि रूट चक्र है, उसका जो बीज मंत्र है लम रहता है. जो सेक्रल चक्र है उसका बीज मंत्र है रम रहता है. सेक्रल चक्र जो हमारा 3 inches बिलो द नेवल रहता है, दैट represents creativity,
that represents emotions, that represents relationship. इसके इम्बैलेंस होने से आप लोगों के या जिसके भी इम्बैलेंस है उनके रिलेशनशिप इश्यूज जरूर आते हैं। क्रिएटिविटी टास्क में वो काम नहीं कर पाएंगे, डांस में, आर्ट में, सॉन्ग में, म्यूजिक में। लेकिन जिनके ये बैलेंस है उनका या जो सेक्रल चक्रा से ऑपरेट कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर आर्ट, क्रिएटिविटी इस फील्ड में फ्लो करेंगे, म्यूजिक में एंजॉय करेंगे, डांस एंजॉय करेंगे, या फिर उनकी क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ में बहुत अच्छी यूटिलाइज करते हैं। और वो उनके रिलेशनशिप बड़े हेल्दी होते हैं लोगों के साथ आसपास, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशंस को हैंडल या मैनेज करना उनको बहुत अच्छे से आ रहा होता है। ये जो लोग होते हैं ये इमोशन से ऑपरेट होते हैं, तो इनका ज्यादातर जो बातें हैं ना उसमें आपको देखा, आई फील दिस, ओ आई फील दैट वे, आई फील यू आर डूइंग दिस, आई फील शी इज डूइंग गुड, फील वर्ड होता है क्योंकि इमोशन से ऑपरेट हो रहे होते हैं। एंड द कलर ऑफ दिस चक्रा इज ऑरेंज। मूविंग ऑन टू सोलर प्लेक्सस। एक और बात, जैसे हमने रूट चक्रा की बात की, तो रूट चक्रा स्पाइन, मैंने बोला कि इसका जो प्लेसमेंट है स्पाइन के बेस पे, तो अगर आपके उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट मीन इट हैज समवेयर कम और इमर्ज फ्रॉम द रूट चक्रा, डिसअलाइनमेंट ऑफ द रूट चक्रा। अगर आपके इमोशंस या आपकी क्रिएटिविटी, ये रिप्रोडक्शन को भी शो करता है, सेक्रल चक्रा जो बिलो नेवल होता है, तो इनको रिप्रोडक्शन, उनके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब समझो कि ये सेक्रल चक्र आपका डिसअलाइन या इम्बैलेंस है। दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग सच इश्यूज। जिनको ओवर एक्टिव होता है वो बड़े इंडल्जेंट होते हैं इन सब एक्टिविटीज में, रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल एक्टिविटीज उनकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, जिनके ओवर एक्टिवेट होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस का जो प्लेसमेंट है दैट इज 3 इंचेस अबव द नेवल। इसका जो कलर रहता है दैट इज येलो कलर, और इसका रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस एंड पावर। सोलर प्लेक्सस जो हमारा चक्र है वो हमें बताता है कि हम कितने पावरफुल हैं, हाउ कंट्रोल्ड आर वी अबाउट द सराउंडिंग, अबाउट द पीपल, अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट आवर इमोशंस। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट। ये आपको, आपकी ये जो सीट है ये पावर की सीट देता है। रूट चक्र आपको स्टेबिलिटी की सीट दे रहा होता है, सेक्रल चक्र आपको इमोशंस की सीट देता है, सोलर प्लेक्सस जो है वो आपकी दुनिया में कितनी पावर है, कितना आपका कॉन्फिडेंस है, कितना आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने बारे में, वो रिप्रेजेंट करता है। जिनका सोलर प्लेक्सस डिसअलाइन या इम्बैलेंस है वो लोग के सेल्फ एस्टीम के, सेल्फ रिस्पेक्ट के बहुत इश्यू होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, राइट। जिनके पावरफुल होते हैं वो पावरफुल होते हैं, अपनी बात धड़ल्ले से कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत अच्छा होता है उनका, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है उन लोगों की। और अगर ये ब्लॉक्ड भी होता है तो डाउटफुल स्टेट में होते हैं। जो सोलर प्लेक्सस है अगर वीक है किसी का तो वो हमेशा डाउट में रहते हैं। हाउ टू एक्टिवेट सोलर प्लेक्सस, तो इसको एक्टिवेट अगर आपने मेडिटेशन के जरिए करना है तो इसका कलर येलो रहता है। इसकी जो प्लेसमेंट है 3 इंचेस अबव द नेवल है, तो जब आप विजुलाइज करो इसका बीज मंत्र, सोलर प्लेक्सस इज ओके, लम इज फॉर रूट चक्र, सेक्रल का वम है, सोलर प्लेक्सस का रूट जो बीज मंत्र है रम है। आप जब रम को प्रैक्टिस करते हैं बाय विजुलाइजिंग येलो कलर अबव 3 इंचेस अबव द नेवल, तो आपका ये हेल्प करता है सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करने में। जिन लोगों को एब्डोमेन से या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो वो सोलर प्लेक्सस उनका कहीं ना कहीं डिसअलाइन या इम्बैलेंस रहता है। लेट्स प्रोसीड टू हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा इज द सेंट्रल चक्रा, क्योंकि हार्ट चक्रा जो है उसके ऊपर भी 3 चक्रा हैं और उसके नीचे भी। उसके नीचे के 3 चक्रा हमने अभी बात किया, जो कि रूट चक्रा है, सेक्रल चक्रा है और सोलर प्लेक्सस है। तो हार्ट चक्रा जो है वो सेंटर चक्रास होते हैं। ये सीट होता है आपकी लाइफ में लव और कंपैशन का, यानी कि जिन लोग का हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड है, दे आर फुल ऑफ लव, फुल ऑफ काइंडनेस, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ एक्सेप्टेंस अबाउट पीपल। फॉरगिवनेस तो आराम से कर देते हैं लोगों को, माफ आराम से कर देंगे। सब उनको अच्छा लग रहा होता है, लोग आसपास अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, पीपल अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, किसी ने कुछ कह दिया वो भी अच्छा है, एंड दे लव देमसेल्व्स आल्सो। जो भी इंसान अगर किसी और से प्रॉब्लम है या जिसको डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, डाउट में रहता है, लोगों को पसंद नहीं करेगा, नेगेटिव थॉट्स में रहता है, वो उसका समझो कि हार्ट चक्र डीएक्टिवेटेड है, इम्बैलेंस है। लेकिन जो बहुत खुश है, अपने आप से भी प्यार कर रहा है, लोगों से भी प्यार करता है, काइंडनेस तो भर के रखी होती है, ट्रस्ट इश्यूज तो बड़े जबरदस्त होते हैं, उनका हार्ट चक्र बहुत एक्टिवेटेड होता है। नाउ जिन लोगों के हार्ट चक्र
इम्बैलेंस है उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी होंगी, इस एरिया से रिलेटेड यानी कि चेस्ट और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हार्ट चक्रा वीक होने से। इसका मतलब है कि आपने बहुत सी चीजें जो है आप यानी कि आपको अपने बारे में लव कम रहा है, आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, आपको कंपैशन आपने कम दिखाया है अपने लिए या लोगों के लिए। दैट्स व्हाई you have to go through these issues in this area of yours। तो जब आपको इसको एक्टिवेट करना है तो आपको बहुत सारा कंपैशन जनरेट करने पड़ेगा अपने लिए भी लोगों के लिए भी। यू शुड बी फुल ऑफ लव। इसको एक एक्टिवेट अगर मेडिटेशन के जरिए करना है तो इसका कलर जो है इट इज ग्रीन इन कलर। इसको ग्रीन कलर आप इसी पोजीशन में यानी कि सेंटर ऑफ द चेस्ट आप विजुलाइज करते हो और आप इसमें एफर्मेशंस भी लगा सकते हो कि आई एम फुल ऑफ लव, I am full of compassion, I am full of kindness, people love me so much, I love people, I love everything around me। So these are the affirmation that you can also use। हर एक चक्रा की एक affirmation है, एक बीज मंत्र है, एक कलर होता है, इमोशंस होते हैं, देवी देवता होते हैं, सब होता है। तो this is how you can rule and control and activate your different chakras। Moving on to our fifth chakra, which is throat chakra, विशुद्धि चक्र। थ्रोट एज यू कैन सी कि थ्रोट हमारे इस एरिया में ही विशुद्धि चक्र रहता है। नाउ थ्रोट चक्र जो होता है इसका जो कलर है दैट इज ब्लू इन कलर। थ्रोट चक्र के एक्टिवेट होने से यानी कि बैलेंस्ड होने से वो लोग अपने आप को ना अपने ट्रूथ को या अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं। they're very communicative, they're very good expressions about how to communicate, they're very clear about what they want in life and how to express। उनके वर्ड्स में ना आपको पावर दिखेगी, लीडरशिप क्वालिटी, बातों से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, कम्युनिकेशन जबरदस्त होता है। दूसरी तरफ विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र जिसका इम्बैलेंस है, डीएक्टिवेट है, उसका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा, वर्ड्स में पावर नहीं होगी, वो डिसऑनेस्ट बहुत होते हैं, उनमें ऑनेस्टी नहीं होगी, वो क्योंकि अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही वो बता पाएंगे। सो थ्रोट चक्र अगर कोई सही बात कर रहा है या मुंह पे बात करता है या उसके वर्ड्स में दम है, उसकी बातों में दम होता है, तो वो थ्रोट चक्र उसका एक्टिवेटेड होता है। और जिसका एक्टिवेट नहीं है उसको थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए अपने थ्रोट चक्र पे मेडिटेशन के जरिए आपको कलर विजुलाइज किया, ब्लू कलर आपने विजुलाइज किया और उसके साथ आपने इसका बीज मंत्र लगाया और 2 या 3 मिनट आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं विद द बीज मंत्र। नाउ अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आप ना करो। अगर आपके कोई गुरु हैं, कोई कोच है, कोई एक्सपर्ट है, उनकी गाइडेंस या ऑब्जर्वेशन में करो, उनसे बात करके करो कि इसको मैं कितना देर तक एक्सटेंड कर सकती हूँ। बिकॉज यू शुड नो वेयर आर यू ऑपरेटिंग फ्रॉम। पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा कौन सा चक्र वीक है, खुद से नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं टू एक्टिवेट चक्रास, टू अलाइन एंड मेडिटेट, यू कैन डू दैट, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड डू इट ऑल अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ गुरु और अ गाइड। जैसे हम लोग ने पहले सीखा, प्रैक्टिस किया, गुरु से कनेक्ट किया, चक्रस के बारे में नॉलेज लिया एंड दैट्स हाउ वी प्रैक्टिस्ड। और मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी प्रैक्टिस जब हमने सीखी तो बड़ी कंसिस्टेंट थी, फिर छूट गई, और जब हमने प्रैक्टिस कंसिस्टेंट लेवल पे किया तो इसका असर भी आया। हमारे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स पे चीज़ें सॉर्टेड होने लग गई, इमोशंस बहुत सारे हम लेट गो करने लग गए, फॉरगिवनेस जनरेट होगी, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स पीपल बहुत अच्छे से मैंने पर्सनल लेवल पे तो बहुत सीखा। That's how I could understand how beautifully these chakras work। थ्रोट चक्र वाले जो लोग हैं ना वो टेल मतलब उनका जो एक्सप्रेशन है, आई स्पीक, उनका स्पीकिंग अगेन बहुत अच्छा होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लीडरशिप क्वालिटीज आप में हैं तो आपको अपना थ्रोट चक्र जो है उसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपका सोलर प्लेक्सस विच रिप्रेजेंट लीडरशिप एंड पावर, अगर वो आपका एक्टिवेटेड है तो थ्रोट चक्र एक्टिवेट होना भी जरूरी है, क्योंकि थ्रोट चक्र से आप अपने पावर को एक्सप्रेस कर पाते हो। अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट ऑन टू द पीपल थ्रू योर लैंग्वेज। नाउ आवर नेक्स्ट चक्र इज थर्ड आई चक्र, अजना चक्र या ज्ञान चक्र। इनका प्लेसमेंट रहता है हमारा ब्रोज के बीच में, या दिस पॉइंट एग्जैक्टली एक्चुअली में हम बताने के लिए यहाँ कहते हैं, लेकिन ये होता है कि ब्रोज के बीच में से अगर आप लाइन लेके चलो और क्राउन चक्र से सेंटर से जो लाइन मिलाते हैं वहां पे इसकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट होती है। सो थर्ड आई चक्र है वो हमारी इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छी होती है उस पर्सन की ना, उसको पता चल जाता है कि ये जब
ऐसे आपके साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ होता होगा कि कई लोग तो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, यानी यानी कि अजना चक्रा वीक ही बहुत है। कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, अजना चक्रा वीक है। जो बड़े बोल्ड होते हैं लोग, क्लैरिटी होती है थॉट की, डिसीजन मेकिंग जबरदस्त होती है इन लोगों की, और इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती हैं इनकी। बहुत आराम से समझ जाते हैं कि दे कैन रीड बिटवीन द लाइंस एक्चुअली, कौन क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है, वो समझ जाते हैं कि कहाँ से हो रहा है। इनका अपने इनर सेल्फ के साथ ना कनेक्शन बहुत जबरदस्त होता है। विजडम का प्लेस है, इंट्यूशन इंट्यूटिव पावर्स का प्लेसमेंट है ये। तो इनकी अपने आप से कनेक्शन जो है, यानी कि आपके हायर सेल्फ से या आपके इनर सेल्फ से कनेक्शन इनका बहुत अच्छा होता है। जो लोग इम्बैलेंस स्टेट ऑफ आजना चक्रा में रहते हैं, उनकी क्लैरिटी बिल्कुल लाइफ की नहीं होती, थॉट्स बहुत वीक होते हैं उनके, डिसीजन मेकिंग पुअर होती है उनकी, दे कैन नॉट कनेक्ट विद देयर इनर सेल्फ। उनमें अपने आप को ग्रो करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता हो, मतलब क्योंकि वो अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट फेस द ट्रूथ अबाउट देमसेल्व्स। सो दे हैव डीएक्टिवेटेड और इम्बैलेंस थर्ड आई चक्रा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा हीलिंग स्टडीज में माना जाता है, प्राणिक हीलिंग में भी, सोलर प्लेक्सस और अजना चक्रा। नाउ द लास्ट चक्रा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जो है हमारे टॉप ऑफ द हेड में इसका प्लेसमेंट रहता है, और इसका वायलेट कलर होता है। थर्ड आई चक्रा का इंडिगो कलर रहता है, और क्राउन चक्रा का जो वायलेट कलर रहता है। नाउ क्राउन चक्रा जो है वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो व्हेन आई से स्पिरिचुअल कनेक्शन हेल्प करने में बिल्ड करने में हेल्प करता है, दैट मीन कि ये आपको आपके सुप्रीम बीइंग से यानी डिविनिटी से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी यू आर वेल कनेक्टेड with the divine powers. You're always guided by divine light, love and divine power. इनकी divine intelligence बहुत strong होगी, divine love बहुत होता है इनमें, divine light बहुत इनकी strong होती है, इनका aura बिल्कुल completely different होता है। क्राउन चक्रा जिनका एक्टिवेटेड होता है, इनका पर्पस ऑफ लाइफ इनको पता होता है, क्लियर होते हैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ। ऑन द अदर हैंड द पीपल हु हैव वीक क्राउन चक्रा, ये पर्पस इनका बिल्कुल अलाइंड नहीं होता, पता ही नहीं होता पर्पस। सेकेंडली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते, मतलब स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा भाग रहे होते हैं, दे कैन नॉट बी इन सिंक विद द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से बहुत दूर रहते हैं, पूजा पाठ, मतलब नो 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 नो। बट दे आर वेरी गुड इन, इनका वर्ल्ड वाइड चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, वर्ल्डली चीज़ों में, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, रूट मतलब रूट चक्र बहुत इनका जो एक्टिवेट होता है। नॉट नेसेसरली दे आर गुड इन क्राउन चक्रा, क्योंकि वर्ल्डली थिंग्स में थोड़ा फंसे होते हैं जो इम्बैलेंस क्राउन चक्रा वाले लोग होते हैं। बट हो सकता है उनका रूट चक्रा जो है वो एक्टिवेटेड हो या फ्लरिशिंग स्टेट में होता है। नाउ क्राउन चक्रा जो है अगर आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको आपके ईष्ट या आपके गॉड जो है उनसे कनेक्शन बनाना पड़ता है। आप चैंट करो, पूजा पाठ जो भी आप करना चाहते हो आप वो करो, और आपकी इनर गाइडेंस, भगवान से इनर गाइडेंस के लिए प्रेयर किया करो। डिविनिटी से कनेक्ट होने की जितनी कोशिश आप कर सकते हो, जितना क्लोज आप अपने सेल्फ के साथ जाओगे, इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, वो मतलब कि अगर आपने अजना चक्र अपना एक्टिवेट किया, तो आपको ये क्राउन चक्र एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। बिकॉज पीपल हु हैव गुड क्राउन चक्रस, वो अपने इनर सेल्फ से बहुत क्लोज होते हैं, मतलब दे कैन accept their realities easily. So this was about these chakras, their positioning, their colors, the thoughts, diseases, जिनका headache या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनका क्राउन चक्रा वीक रहता है। जब हम थर्ड आई चक्रा की बात करें, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो आईज इस एरिया से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम है, यानी कि थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं उनका हिला हुआ है, और या फिर उनकी लाइफ में क्लैरिटीज कम इशू आ रहे हैं। ये तो ना फिजिकल, मैंने बताया कि फिजिकल यहाँ पे अगर प्लेसमेंट है, वो भी एक तरीका है समझने का कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ये चक्रा वीक है। दूसरा, जो इमोशंस जिस चक्रा से रिलेटेड है, अगर वो इमोशन आपका इम्बैलेंस है, तो मतलब उस चक्रा में प्रॉब्लम है। जैसे क्लैरिटी बोलते हैं कि इसको तो डिसीजन ही नहीं लेने आते, इसको तो क्लैरिटी नहीं है लाइफ, मतलब अजना चक्रा वीक है, इसका समझ ही नहीं आ रहा इसको क्या करना है, इनर सेल्फ ही नहीं कनेक्ट हो रहा, ग्रो ही नहीं किया जा रहा है लाइफ में, मतलब ये क्रिएट मतलब नहीं कर पा रहा है, इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद द और एक्टिवेट द अजना चक्रा। नाउ ऐसे ही थ्रोट चक्रा, मतलब गले से टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है,
ये सब थ्रोट चक्रा के डीएक्टिविटी इम्बैलेंस होने से। हार्ट चक्रा मैंने बताया कि हार्ट लंग्स चेस्ट रिलेटेड जो जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो हार्ट चक्रा पे काम करें। सोलर प्लेक्सस यानी डाइजेशन या अपना एब्डामन एरिया से जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो सोलर प्लेक्सस उनके वीक हैं, या जिनमें लैक ऑफ पावर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कि सोलर प्लेक्सस बहुत वीक है उन लोगों का। सेक्रल चक्रा की हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन से इनको इश्यूज आ रहे हैं। क्रिएटिविटी, म्यूजिक, डांस, फ्लो, मतलब इसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है सेक्रल चक्रा का, तो वो फ्लो, वाटर क्या होता है, फ्री फ्लोइंग होता है। क्रिएटिविटी भी फ्री फ्लोइंग होती है, तो जिनकी क्रिएटिविटी कम है, कंट्रोल्ड है, मतलब सेक्रल चक्रा काम नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन में इश्यूज आ रहे हैं, सेक्रल चक्रा ब्लॉक है, तो उस पर काम किया जा सकता है। और रूट चक्रा मैंने आपको जैसे बताया कि इट इज अ प्लेस ऑफ ग्राउंडिंग, फाउंडेशन, ये आपके फाउंडेशन का काम कर रहा है, आपको ग्राउंडिंग दे रहा है। तो सारे चक्रास को डिफरेंट वेज से आप हील, एक्टिवेट या बैलेंस में ला सकते हो। देयर डिफरेंट वेज, एक्सरसाइज करके, बीज मंत्रा से रेसिटेशन करके, एफर्मेशंस करके, उस कलर को और बीज मंत्रास को विजुलाइज करके विद द एफर्मेशंस that can help you activate and balance your chakras. Now moving on to next slide which tell you, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो रूट चक्रा, if you can see रूट चक्रा base of the spine, you can see the red color, वो I am, मैं क्या हूँ, आपकी रूट से कनेक्ट करता है ना, आपको वो बताता है। जो सेक्रल चक्रा है वो ऑरेंज कलर का है, आई फील, ये लोग इमोशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो इनके इमोशंस, जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं फ्री फ्लोइंग होता है अगर बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, इमोशंस बहुत वीक होते हैं इनके। नाउ सोलर प्लेक्सस जो है येलो कलर, आई डू, क्योंकि वो प्लेस ऑफ पावर है, प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस है। मूविंग ऑन टू हार्ट चक्रा, आई लव, क्योंकि वो प्लेस ऑफ लव है, कंपैशन है, तो ये लोग फुल ऑफ लव होते हैं। और जिनमें फुल ऑफ लव या ट्रस्ट इश्यूज है, इनसिक्योरिटीज हैं या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इनका हार्ट चक्रा वीक होता है। नाउ नेक्स्ट इज द थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, विच इज ब्लू इन कलर। टॉक, इनके थ्रोट या कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, असर्टिव होता है, इनके वर्ड्स में बहुत दम होता है, पावर होती है। देन अचुना चक्रा, आई सी, बिकॉज मैंने कहा कि उनकी इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होती है, सो दे कैन सी इजिली और दे कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, उनको समझ आ जाती है चीजों की। देन द क्राउन चक्रा विच सेज आई अंडरस्टैंड, मीन्स कि मैं हर चीज के बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने बारे में, लोगों के बारे में, थॉट्स के बारे में, व्हाट इज लाइफ, पर्पस के बारे में, दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। How to activate chakra. Today we'll practice meditation for 10 minutes. This is 7:44 now. So हम 10 मिनट का चक्रास पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जरिए हैं, जैसे जो लोग दान पुण्य भी करते हैं, मैंने कहा कि बीज मंत्रा से आप एक्टिवेट कर सकते हो, उस देवी देवता को उसका विजुलाइज करके या उनको बुला के उनका ध्यान करके आप उस बीज मंत्रा पे और कलर के साथ जब आप करते हैं तो भी आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं। प्लस हीलिंग मोडालिटी में बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने जो हमारे पास हमारे क्लाइंट्स होते हैं हम उनको बताते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। That can also be done. But today we will practice how to activate chakras through meditation. बहुत छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग है जो सब लोग आई थिंक अवेयर भी हैं कि जब भी आप कोई भी मेडिटेशन, नॉट जस्ट चक्रा बट कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, सो यू नीड टू सिट वेरी कंफर्टेबली। आप लाई डाउन भी कर सकते हो, आप बैठ के, बट योर स्पाइन शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट। स्पाइन शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट, हमेशा कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हो, स्पाइन आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। और इसमें पर्टिकुलरली क्योंकि हम करी काम चक्रास पे रहे हैं, और आपको आईज क्लोज क्यों करनी है, बिकॉज यू हैव टू शट द आउटसाइड वर्ल्ड। आपको जो जो चीजें, जैसे अब आप आगे खोल के बैठे हैं तो आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है ना, तो आपके थॉट्स एकदम उस थॉट, आपका जो ध्यान है वो थॉट को इनवाइट कर लेता है, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट जो है वो थॉट इनवाइट करता है, तो आपका ध्यान भटकने लग जाता है, सो यू फील डिस्ट्रैक्टेड। जब हम आईज को शट डाउन कर लेते हैं तो हम बाहर के वर्ल्ड से तो शट डाउन हो गए, लेकिन मेंटल क्लटर फिर चल रहा है। तो जब भी कोई ध्यान या साधना करते हैं तो मेंटल क्लटर, मतलब बाहर का क्लटर तो शट डाउन किया, लेकिन मेंटल क्लटर यानी थॉट्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और हर अभ्यास के लिए जैसे डीप ब्रेथ, स्लो ब्रीदिंग में जाना जरूरी होता है। फास्ट ब्रीदिंग आप अभ्यास के साधना के लिए नहीं करते, वो प्राणायाम हो सकता है, कपालभाति, दैट कैन बी डन। जिनका हार्ट चक्रा वीक है वो उनको एडवाइस किया जाता है, या सोलर प्लेक्सस वीक होता है उनके लिए एडविजिबल होता है।
बट नॉट फॉर द ध्यान और साधना. वी कांट डू दैट. हमने हर एक चक्रा पे वन बाय वन विजुलाइज करेंगे हम. और एफर्मेशन और चैंटिंग, मतलब कि आप जब स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे बीज मंत्र और कलर वो आ जाएगा. तो अभी क्योंकि आप नए हो, नॉविस हो, बिगनर हो, आप क्लोज आइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको बीज मंत्र नहीं पता है, आपको कलर नहीं पता है. यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग. तो अभी आप आईज ओपन करके देख के उस वर्ड को या उस कलर को विजुलाइज करके उस चक्रा के लिए कर सकते हो, प्रॉपर जिस भी चक्रा पे. और जब आपका अभी मुझे लगता है कि इतने अंडरस्टैंडिंग या क्लोजली 40 मिनट्स की अंडरस्टैंडिंग में आपको ये समझ जरूर आया होगा अपना बारे में कि मेरा कौन सा चक्रा, मैं कहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ और मेरा कौन सा चक्रा वीक है. मुझे अगर ये प्रॉब्लम है तो अच्छा, मुझे इस चक्रा पे काम करना है. अगर मुझे डाइजेशन इशू आ रहे हैं यानी कि मुझे अपने सेक्रल या सोलर प्लेक्सिस पे काम करना है. मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा सेक्रल वीक है. अगर मेरे को बैक की प्रॉब्लम है तो मेरा स्पाइन यानी रूट चक्रा खराब है. मेरा हार्ट, चेस्ट, लंग में प्रॉब्लम है तो मेरे हार्ट चक्रा की प्रॉब्लम है. थ्रोट, थायराइड है, टॉन्सिल्स है तो मेरा थ्रोट चक्रा खराब है. मेरे को क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, हेडेक है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा ये अजना चक्रा में प्रॉब्लम है. आई थिंक आई एम एबल टू गिव यू दिस अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट के कहाँ कहाँ क्या क्या इमोशंस आपके हिले हुए हैं, इम्बैलेंस है, डिजीज कहाँ से आ रही है. सो आई फील दैट आई एम सक्सीडेड इन गिविंग यू दिस अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू सुनैना. नाउ इसको जो चक्रा मेडिटेशन जो हम अभी करने वाले हैं, आप इसको डेली लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने एंड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. बट अगेन आई वुड एम्फसाइज, अगर आप किसी भी मंत्र या बीज मंत्र को 3 मिनट से ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ये किसी गुरु या कोच या एक प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में ही करेंगे. तो सिंपल चक्रा मेडिटेशन के लिए मैंने अभी बताया, आपको सीधे बैठना है या आराम से आप लेट भी सकते हैं. क्लोज आइज करनी है, आज के लिए आप छोड़ भी सकते हैं. डीप ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग आपको अपनी स्लो रखनी है. ईच चक्रा पे फोकस करना है, विजुलाइज लाइट करनी है. अगर तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो गई है कि रूट चक्रा में रेड है, सेक्रल में ऑरेंज है, सोलर प्लेक्सस में येलो है, हार्ट चक्रा में ग्रीन है, थ्रोट चक्रा में हमारा ब्लू है, और अजना चक्रा में इंडिगो है, क्राउन चक्रा में वायलेट है. अगर तो ये आप विबग्योर से याद रख सकते हैं तो आप उस चक्रा को उस कलर से विजुलाइज कर सकते हो. नहीं तो हीलिंग स्टडीज में व्हाइट लाइट को भी कहा जाता है कि आप व्हाइट लाइट को भी उस चक्रास पे आप देख सकते हैं कि वो ऑपरेट हो रहा है. तो ये चक्रा अपने आप घूमते रहते हैं, क्लॉकवाइज भी घूमते हैं. और जब चक्रास क्लीन होते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट कर रहे होते हैं बॉडी में. खुद वो अपने आप की क्लेंजिंग भी खुद कर रहे होते हैं विद योर एक्टिविटीज. आपके जैसे जैसे थॉट चलते हैं, जैसे जैसे आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड रहता है, ये चक्रास वैसे वैसे ऑपरेट करने लग जाते हैं. इसीलिए आपको अपने मेंटल थॉट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या थॉट, किस टाइम पे क्या थॉट सोच रही हूँ, क्या थॉट आ रहे हैं, कौन से लेट गो करने हैं और कौन से थॉट्स को, कौन से इमोशंस को होल्ड करना है, so that my chakras stay aligned. And once your chakras are aligned and activated, your physical life is taken care of. आपके हर स्टेट ऑफ लाइफ को टेक केयर किया जा सकता है, वो आप ही के कंट्रोल में रहता है. Conclusions we will proceed, but before that I would like to share, so I request everyone to sit comfortably, to lie down if you wish to. अगर बहुत देर आपको बैठे हो गई है या प्रॉब्लम आ रहा है आपको बैठने में तो यू कैन जस्ट लाई डाउन ऑल्सो. यू कैन क्लोज योर आइज, अगर आपको आइज क्लोज करके करना है. अगर आपको आइज ओपन करके करना है, यू कैन ओपन योर आइज एज वेल. And I'm really thankful to every participant who have taken out time and be with me here today on this Chakra Awareness Program. Thank you, Vidya. Let's proceed to our Chakra meditation. Give me a minute. Thank you, Sunana. Sunana, can you take up for 2 minutes? Meanwhile, I'll just take up the meditation. Yeah, sure. Hi, good evening, everyone.
So it was a very wonderful session delivered by you, Tushar. Thank you. बहुत ही अच्छे से आपने और बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, जितने भी चक्रास में कौन कौन से इमोशंस होते हैं। बिकॉज आई थिंक डे टू डे लाइफ में मुझे लगता है कि हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं या नियर एंड डियर वन, स्पेशली जो ओल्ड एज में रहते हैं, उनके साथ काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं। एंड जब हमने ये किया था प्रैक्टिस को, तो आई थिंक बता रहे थे कि जो हमारे मेंटर्स थे वो बता रहे थे कि इवन जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी को काउंसलिंग नहीं दे पा रहे होते हैं, या किसी को मतलब वो सुनने के पोजीशन में नहीं होता है, क्योंकि उनकी अजना चक्रा जो है वो काफी स्लो हो जाता है, और वो नेगेटिव थिंकिंग के कारण, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स के कारण या पैटर्न्स के कारण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ज्यादा घूमता है, और वो थोड़ा सा स्लो मोशन में हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपका चक्रा जो है वो स्लो मोशन में घूमता है, उतना ज्यादा लाइक उससे ये पता लगता है कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है कॉन्स्टेंटली लाइक कितना जो है गार्बेज आपके उस पर्टिकुलर चक्रा के अंदर है। तो सबसे अमेजिंग बात ये है जो मुझे आपके सेशन से मिली तुषार, कि अपने आई मीन इफ अ पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द काउंसलिंग और गिव द काउंसलिंग, है ना, सो उनको उनके चक्रास पर उनको बिना बताए काम किया जा सकता है। मतलब इफ दे आर योर फैमिली मेंबर्स, तो विदाउट देयर परमिशन ऑल्सो यू कैन हील देम थ्रू चक्रा मेडिटेशन, जो भी हीलिंग वर्क रहता है उसके थ्रू। और तुषार और हमने दोनों ही ने ही इकट्ठे प्रैक्टिस किया है, तो वी आर एबल टू सी द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रैक्टिस स्पेशली। So yeah, I think Tushar, if you're ready for the Yeah, meditation, proceed. yeah. Yeah. I would just like to add on. जो जैसे मैंने कहा कि अभी मुझे लगा कि सबको बीज मंत्र या कलर का नहीं है, तो व्हाट आई हैव डन फॉर योर कन्वीनियंस ओनली, फॉर एवरीबॉडीज कन्वीनियंस, के जो अभी मेडिटेशन हम करने वाले हैं उसमें वो खुद गाइड ही कर रहे होंगे आपको। तो आप क्लोज आइज के साथ भी बैठ सकते हो, सुन सकते हो और मेडिटेट कर सकते हैं। एंड प्लीज सिट कंफर्टेबली, एक शांत जगह पे अपना आप बैठे जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। इट विल टेक 10 minutes and just focus on every word that has been said so that you can focus and understand how it works for your body and your emotions. Thank you so much. एक ऐसा समय जिसमें आप खुद को वापस दे सकते हैं और वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। एक और गहरी सांस लें और अपने पूरे शरीर को जितना हो सके कस लें। 5 4 3 2 1 के लिए रुकिए और छोड़िए। फिर से गहरी सांस लें और अपने पूरे शरीर को कस लें। 5 4 3 2 1 के लिए रुकिए और छोड़िए। और आखिरी बार गहरी सांस लें और अपने शरीर को कस लें। 5 4 3 2 1 के लिए रुकिए और छोड़िए। विश्राम और शांति की इस भावना का आनंद लेने के लिए कुछ समय निकालें। अब अपनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर टेलबोन क्षेत्र में स्थित अपने मूल चक्र के प्रति सजग हों। अब अपने मूल चक्र में सांस लें और इसे लाल रंग में चमकते हुए देखें, क्योंकि यह अनंत विस्तारशील स्रोत ऊर्जा से जुड़ता है। अब आपको इस जीवन शक्ति ऊर्जा से वह सब मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है। यह आपके मूल चक्र को साफ और रिचार्ज कर रहा है और आपको जीवन और दुनिया में विश्वास की गहरी भावना के साथ सशक्त बना रहा है। यह ज्ञान कि आप पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित हैं, यहाँ और अभी में शांत हैं। इस चक्र में लाल प्रकाश चमक रहा है, पूरी तरह से ठीक हो गया है।
पुनर्संतुलित हो गया है और आपके पूरे सिस्टम के ऊर्जा प्रवाह के साथ जुड़ गया है। अब आप अपने निचले पेट में नाभि के ठीक नीचे अपने पवित्र चक्र के बारे में जानते हैं। अब अपने पवित्र चक्र में सांस लें और इसे अनंत विस्तारशील स्रोत ऊर्जा से जुड़ते हुए नारंगी चमकते हुए देखें। अब आपको इस रचनात्मक जीवन शक्ति ऊर्जा से वह सब मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है। यह आपके पवित्र चक्र को साफ और रिचार्ज कर रहा है, जिससे आप अपनी भावनाओं, कामुकता और रचनात्मकता को स्वीकृति, संतुलन और कल्याण के साथ महसूस कर सकते हैं और जीवन के साथ सामंजस्य, लचीलापन और प्रवाह की अद्भुत भावना पैदा कर सकते हैं। इस चक्र में नारंगी प्रकाश चमक रहा है जो अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। आपके पूरे सिस्टम के ऊर्जा प्रवाह के साथ पुनर्संतुलित और संरेखित है। अब आप अपने पेट के ऊपरी हिस्से में अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में जानते हैं, जहां आपका डायाफ्राम रहता है। अब अपने सोलर प्लेक्सस चक्र में सांस लें और इसे पीले रंग में चमकते हुए देखें, क्योंकि यह अनंत विस्तारशील स्रोत ऊर्जा से जुड़ता है। अब आपको इस सशक्त जीवन शक्ति ऊर्जा से वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को शुद्ध और रिचार्ज कर रहा है, दुनिया में अपनी शक्ति को प्रसारित करने की आपकी क्षमता को नवीनीकृत कर रहा है और आपको अपनी व्यक्तिगत शक्ति से फिर से जोड़ रहा है, ताकि आप दुनिया में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और इरादों को साकार कर सकें। इस चक्र में अब पीली रोशनी पूरी तरह से ठीक हो गई है, पुनर्संतुलित हो गई है और आपके पूरे सिस्टम के ऊर्जा प्रवाह के साथ संरेखित हो गई है। अब आप अपने सीने के केंद्र में अपने हृदय चक्र के बारे में जानते हैं। अब अपने हृदय चक्र में सांस लें और इसे हरे रंग में चमकते हुए देखें, क्योंकि यह अनंत विस्तारशील स्रोत ऊर्जा से जुड़ता है। अब आपको इस प्रेमपूर्ण जीवन शक्ति ऊर्जा से वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके हृदय चक्र को शुद्ध और रिचार्ज कर रहा है, जिससे आप अपने लिए एक गहरा बिना शर्त प्यार महसूस कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसा प्यार जो आपके अंदर से खूबसूरती को प्रसारित करता है और आपको जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए संतुष्टि, कृतज्ञता और खुशी का गहरा एहसास देता है। इस चक्र में अब हरी रोशनी चमक रही है, पूरी तरह से ठीक हो गया है, पुनर्संतुलित हो गया है और आपके पूरे सिस्टम के ऊर्जा प्रवाह के साथ जुड़ गया है। अब आप अपने गले के बीच में अपने गले के चक्र के बारे में जानते हैं। अब अपने गले के चक्र में सांस लें और इसे हल्के नीले रंग में चमकते हुए देखें, क्योंकि यह अनंत विस्तारशील स्रोत ऊर्जा से जुड़ता है। अब आपको इस आत्मविश्वासपूर्ण जीवन शक्ति ऊर्जा से वह सब मिल रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके गले के चक्र को शुद्ध और रिचार्ज कर रहा है, जिससे आप अपने सबसे प्रामाणिक स्व, अपनी सच्चाई और जीवन के उद्देश्य को व्यक्त कर सकते हैं और खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए सशक्त हो सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को दुनिया में उसके सबसे सही रूप में पेश करना। इस चक्र में अब हल्की नीली रोशनी चमक रही है, पूरी तरह से ठीक हो गया है, पुनर्संतुलित हो गया है और आपके पूरे सिस्टम के ऊर्जा प्रवाह के साथ जुड़ गया है।
अब आप अपने माथे पर आंखों के बीच में अपने तीसरे नेत्र चक्र के बारे में जानते हैं। अब अपने तीसरे नेत्र चक्र में सांस लें और इसे अनंत विस्तारशील स्रोत ऊर्जा से जुड़ते हुए नीले रंग में चमकते हुए देखें। अब आपको इस सहज जीवन शक्ति ऊर्जा से वह सब मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है। आपके तीसरे नेत्र चक्र को साफ और रिचार्ज कर रहा है, जिससे आप अपने सबसे खुले, कल्पनाशील और बुद्धिमान हो सकते हैं। जागृत और आपके भीतर ज्ञान के अंतर्ज्ञान और स्रोत से जुड़े हुए हैं। इस चक्र में अब इंडिगो लाइट चमक रही है, पूरी तरह से ठीक हो गई है, पुनर्संतुलित हो गई है और आपके पूरे सिस्टम के ऊर्जा प्रवाह के साथ जुड़ गई है। अब आप अपने सिर के ठीक ऊपर अपने क्राउन चक्र के बारे में जानते हैं। अब अपने क्राउन चक्र में सांस लें और इसे बैंगनी चमकते हुए देखें, क्योंकि यह अनंत विस्तारशील स्रोत ऊर्जा से जुड़ता है। अब आपको इस सार्वभौमिक जीवन शक्ति ऊर्जा से वह सब मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है। आपके क्राउन चक्र को साफ और रिचार्ज कर रहा है, जिससे आप अपने शुद्धतम रूप में पूरी तरह से मौजूद महसूस कर सकते हैं। दिव्या, अनंत, सार्वभौमिक से जुड़े होने की एक आनंदमय स्थिति। इस चक्र में अब बैंगनी प्रकाश चमक रहा है, पूरी तरह से ठीक हो गया है, पुनर्संतुलित हो गया है और आपके पूरे सिस्टम के ऊर्जा प्रवाह के साथ संरेखित हो गया है। और यह हो गया। अब आपके पूरे शरीर में इंद्रधनुषी रोशनी की एक लहर दौड़ती है, जो आपके सिस्टम में नई, जीवंत ऊर्जा को सील कर देती है, जिससे आप शांत, संपूर्ण और तरोताजा महसूस करते हैं। अब आप दुनिया में चमकने के लिए आगे बढ़ें, प्रबुद्ध, सशक्त और खुद के लिए और दूसरों के लिए प्यार से भरे हुए। जब आप तैयार हो, तो कमरे में वापस आएं और अपने शरीर के प्रति जागरूक हो। एक गहरी सांस लें और अपने समय पर अपनी आंखें खोलें। मैं जेस से हूँ, जो लिव द लाइफ यू लव से आपको एक शानदार जीवन जीने में मदद कर रही हूँ। और मैं आपसे प्यार You may gently rub your hands, put it on your eyes, and gently open your eyes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. I hope you have a great experience with this meditation and that succeeded in guiding you by focusing on each chakras, with the mantras, with the color, with the emotions. एक और चीज़ जो मैं जब ये प्रैक्टिस अभी आपके साथ कर रही थी, तो मुझे एक और चीज़ आई कि वो बार बार ये कह रही थी कि अब मेरा ये ठीक हो गया है या मैं इसको ठीक से देख पा रही हूँ। Why this was used? Because जब भी हम कोई चीज़ अफर्म करते हैं लाइफ में, तो हम कभी ऐसे अफर्म नहीं करते कि ये मेरा ठीक हो जाएगा। हम इसे कहते हैं कि ये मेरा ठीक हो गया है। That's why we call it affirmation, because हम affirm करके यूनिवर्स के साथ उसको सील कर देते हैं। तो that's a contract. Affirmation is a contract that we seal with the universe that it has already been granted to us. इसीलिए जब भी कोई चीज़ affirm या आप ध्यान कर रहे हैं, affirm कर रहे हैं, तो उसे ये कहें कि वो ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। उसके लिए लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, ग्रेटफुल, जो भी आप अपने ईस्ट को, गॉड को, यूनिवर्स को इनवाइट करके कहना चाहते हैं, बट अफर्म करके पॉजिटिव सेंस में कन्वे करें। And I really thank each and every participant on this platform today for joining me.
I hope I have succeeded in delivering and giving you a bit of an understanding about chakra awareness, how the chakra works, what are the emotions related to each chakra, what are the colors, what you can do, how you can cure your diseases, and there are many more things that we do in advanced sessions as well. But really, from the bottom of my heart, thank you, each and every participant. Thank you. Now, I would like everyone to come on screen and share your inputs and what you have got from the session, what you could, take, and what are your takeaways. Thank you. Thank you, Sunana. Thank you, everyone. Yeah. You can have your hand raised and you can speak up. Thank you very much. Thank you, Buaji. It Buaji, was so it Thank sorry, you, I was could not a take good your Tushar call. it was ji. a आपको good बहुत बहुत session, thank huh? you. And useful, very useful for everyone. Thank you. Thank you so much, और Buaji. हम थोड़ा लेट ज्वाइन हुए इसलिए थोड़ा कम समझ पाए. No problem, Bhumika ji. You can get in recording for the same. ठीक है. Yeah. Thank you. Thank you, Bhumika ji. Even you joined late. बाकी Thank you so much. जितना भी लेट ज्वाइन हुए फिर भी ये लगा कि हाँ काफी अच्छा आप समझाने की चक्रा कोशिश कर रही है. जी. तो थोड़ा सा समझ में आया पर पहला बार था इसलिए थोड़ा सा No problem. भूमिका जी, हम तो डिस्मिस काफी रहा. समय से जुड़े हुए हैं. यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम. आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कॉल मी अप स्ट्रेट. कभी भी आप मेरे को डीएम करो, स्ट्रेट रीच आउट करो, कॉल करो. आई एम ऑलवेज देयर टू थैंक यू. thank you so much for joining. Vidyashri, you have your hand raised. Please go ahead, unmute yourself and speak up. Thank you. Yeah, thank you so much. And this session was very helpful. And the meditation, actually, I do not understand Hindi. I mean, the complete Hindi, how it was taught in the, means it was in the YouTube video. But I tried my best and I was able to connect. I felt special in the crown chakra and the third eye chakra. I really enjoyed. I had a smile on my face and I really felt amazing. The other chakras, like I was not able to connect so much, but the third eye and the crown chakra really connected, and I had a smile on my face. And Thank you. I'm really thankful to you and your community, and also to God and the universe. Thank you so much, Vidya. I'm really sorry that I should have asked before starting the session about the medium of instruction, because usually the participant here comes who are very comfortable in understanding in Hindi. So I should have asked. That's my failure on my part. Really, I seek an apology for that. But No, definitely we can connect. We can, connect on chat, on call, and you would get to know and get to learn more about the chakras. Thank you. Thank you, by the way, for joining. sure, Tushar. Thank you so Thank much. you. Thank Thank you. you. Ji. Right. Anyone who would want to share their takeaways, their understanding? Hello, Wonderful Tushar. session, Tushar. Well done. Thank you for Thank great insights. Great, lovely insights. Thanks. you. Thank you so much, Sheetal, for joining. Thank you so much. You've always been a great support, Sheetal, and I really appreciate your presence today. थैंक यू तुषार, बहुत ही अमेजिंग था. मैं तो रूम में आके लेट कर ये मेडिटेशन किया इसके लिए. अभी भी रूम में अंधेरा है, मेरा फेस क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा. बस ऐसा लग रहा था, बहुत ही अमेजिंग. मैंने उसे महसूस भी किया क्योंकि मैंने भी 2nd डिग्री तक रेकी किया हुआ है. जी. तो एक्टिव और ये सब फील किया मैंने हाथ रखकर, जो भी चक्र पे थे, कलर को विजुलाइज करके. जी. और उसको बहुत ही अमेजिंग. Thank you so much. And I can see your chakras are activated through your screen, all the rainbow colors I can see on screen. Okay. Thank you, Sapna ji. Thank you so much for joining. बिल्कुल इन तक जुड़े रहने के लिए. I know आपके अपने sessions रहते हैं, but still you could be here with us today. Really grateful for that. Thank you so much. ग्रुप एनर्जी बहुत अमेजिंग था, फील भी किया. जी. तो इसके लिए मुझे खुद अभी इतना ऐसे रिलैक्स लग रहा है कि आंखें बंद करके बस उसी में रहो.
Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much for your warm words. Thank you. Ji, anyone who would want to say? थैंक यू तुषार जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा। और मेरे लिए भी, मैंने ज्यादा चक्र मेडिटेशन कभी किया नहीं है, जी बहुत कम किया है, कभी एक दो बारी, बट जी, इट वाज वंडरफुल। आपका बताने का तरीका बहुत प्यारा और बहुत अच्छा था, जो थैंक यू, काफी क्लैरिटी हुई। एंड मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रहा, फीलिंग मच फ्रेशर एंड एनर्जेटिक। या thank you, wonderful. Thank you so थैंक यू, much for थैंक यू सो मच, participating, Ashwin थैंक ji. यू सुकाश जी, Thank you, थैंक यू सो मच। या thank you so much. Thank you, Sonal ji. For थैंक यू तुषार, बहुत अच्छा करवाया आपने, thank you. बहुत अच्छे समझ आया सब कुछ। Thank you so much, Alka ji. Thank you so much. I will also request everyone to please come on screen because I would love to take a picture with your beautiful faces, if you are okay with that. But I would really encourage those who can come on screen, please come because I would love to capture this moment and these beautiful smiles. Thank you so much, Ashwinder ji. Those who can come on screen, Alka ji, Sonal, Bhumika ji, Shashi auntie, Garima ji, Mama, Harry, एक मिनट। Piyush, Bua ji, Sangeeta ji, Sheetal, and Monica ji. I'm still waiting for more people to come up so that I can take the picture. Harry, Garima ji, Shashi auntie, Bhumika ji. Thank you. Piyush, Monica ji. Sheetal, if you're okay to come on screen, I would love it. तुषार, बहुत अच्छा लगा, Thank you, auntie. बहुत इंसाइट मिले। हाँ, मेडिटेशन और ये चक्रास का बहुत Thank, ही अच्छा लगा। वंडरफुल सेशन। thank you so much. Thank you so much. Can I have big smile of every person who is on camera? Yeah. Thank you so much, auntie, for coming on screen. Thank you. Wonderful. Lovely. Thank you. See. Yeah. More insights, more takeaways if you wish to share, or we can wind up. But before we wind up, I would like to add we're going to have another session on tarot. So this is the first session on InSync mindset and mind openers community. Tarot session, we have been waiting for long. I think every participant who have been with us on this journey of autobiography of a yogi, सबको पता होगा कि हम शीतल से बहुत बार कह चुके हैं कि शीतल हमारी कम्युनिटी को भी आप एक टैरो का सेशन दें. So Sheetal has finally acceded, and she would be delivering the session on tarot card reading for our community, for Mind Openers community. And I would share the message in the group, and I would request and encourage everyone to share and spread the word about the same in your groups. आप लोगों का circle है, WhatsApp communities है, आप status पे डालें और लोगों को लेके आए, so that they can also get insights and get this knowledge about what tarot reading is all about and how it does magic and how it heals your life, how it opens up the different avenue in your life. Thank you. And Sheetal, thank you so much for coming and for taking our time again and acceding to our request that please deliver one for our community. Yeah. Sunaina, you have your hand raised. Please go ahead. She is my soul sister, by the way. मतलब ये पता नहीं अलग से पैदा हुई है. ये शशि आंटी के घर पता नहीं कैसे चलेगी, but I call it my soul sister. It is so lucky to have you people in my life, Tushar. You, Sheetal, Monica ji. You guys are wonderful and playing a very, very important role in my life too. We can discuss about it some other time also. But today is your day that you delivered a presentation on chakras. That was really wonderful and wonderful insights there. And I'm sure ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे कि सब तक ये मैसेज पहुंचा. हालांकि बिट्स एंड पीसेस में इधर से उधर से कहीं ना कहीं किसी रिसोर्स से आजकल इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे स्प्रेड है ये नॉलेज चक्रास का. तो आई थिंक बेसिक जो चक्रास की नॉलेज है ये होना ही, इसके बारे में पता होना कि कौन सा चक्रा, कौन सा इमोशन, कौन सा कलर, क्या चीजें हमें पहननी चाहिए, क्या खानी चाहिए. ये सारी चीजें कितना ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में.
एंड मोर लाइक आई थिंक बहुत लोगों को आज बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे कि कैसे अपने पेरेंट्स को वो हील करने में हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनके चक्रास को वो बैलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं, हाउ दे कैन लर्न द थिंग्स एंड हाउ दे कैन टेक इनिशिएटिव फॉर देयर टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ, आई मस्ट से. And because healthy mind, healthy body will lead to a healthy life and lifestyle, disease free life, I must say. एंड उसके अलावा आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट बुक एज वेल. जिन लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो सब लोग प्लीज ऑर्डर प्लेस कर दें. द बुक इज पावर ऑफ नाउ एंड लिंक इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप्स. एंड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन गेट इन टच विद अस. एंड उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, आई मीन फील फ्री टू आस्क तुषार, मी, शीतल एंड एवरीवन. एंड आज मोनिका जी नहीं आए. आई थिंक वी आर मिसिंग मोनिका जी टुडे. आई थिंक शी मस्ट बी बिजी समवेयर, आई थिंक. So मेरा Please क्वेश्चन convey, है कि convey. ये बुक इंग्लिश में यहाँ yeah. पर होगी, यानी रीडिंग, या हिंदी में? इंग्लिश रहेगा, दोनों में, हिंदी इंग्लिश में रहेगा सबका. या कर सकते हैं कि इंग्लिश में रीड कर लें और एक्सप्लेन हम हिंदी में कर दें. मतलब इट विल बी लाइक बोथ वेज. बिकॉज यहाँ अभी जैसे विद्या जी आई हुई हैं आज, तो शी माइट लाइक टू कम फर्दर, तो उनको इंग्लिश हिंदी बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है. ग्रेजुअली वी गॉट टू नो अबाउट दैट. एंड और ये मेरे पास हिंदी में बुक है, अच्छा. जैसा भी आप. या दैट्स फाइन. एंड आई थिंक मंडे तक सबका रिसीव हो जाएगा मुझे लगता है. अगर आज भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आई थिंक टिल संडे यू विल बी रिसीविंग योर बुक्स एंड वी कैन स्टार्ट द सेशन फ्रॉम मंडे. एंड प्रोबेबली आई विल बी ऑल्सो हैविंग अ सेशन ऑन ancestral healing and inner child. And Friday is for Sheetal, and I might be taking within the next week or 10 days or 15 days, जब भी कोई डे फ्री होता है. सो वी आई मीन ये बहुत अच्छा लगता है कि किसी को किसी भी तरह की नॉलेज है जो भी हम गेन कर रहे हैं, एंड वी आर एबल टू शेयर विद पीपल. बिकॉज शेयर करना और जो भी नॉलेज है उसको बांटने से मुझे लगता है आपके खुद के इनसाइट्स भी क्लियर होते हैं. आपको खुद को भी पता लगता है. यू टेक अ फीडबैक फॉर योर लाइफ, फॉर योर सेल्फ, एंड यू ऑपरेट इन अ बिट बेटर मैनर. एंड और इफेक्टिवली भी हम उसको आई थिंक लीड करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को. एंड उसके अलावा अवेयरनेस, मतलब जो मेजरली जो सबसे बड़ी बात मुझे सब सेशंस के थ्रू पता लगती है वो यही है कि कुछ भी सही या गलत नहीं है इस धरती पर. सिर्फ अवेयर और नॉन अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड नॉन अवेयरनेस एग्जिस्ट करती है. आई मीन या तो हम अवेयरनेस में ऑपरेट होते हैं या फिर नॉन अवेयरनेस में ऑपरेट होते हैं. और जब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है तो हमारा जो एक्सेप्टेंस है और जो हार्ट चक्रा है वो आई मीन टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ एंड टुवर्ड्स पीपल, वो है ओपन होना शुरू हो जाता है. और ईच एंड एवरी थॉट एंड ईच एंड एवरी बिलीफ दैट वी कैरी, उससे हमारे चक्रास जो हैं अलाइन या मिस अलाइन हो जाते हैं. तो आई थिंक ये हमारे ही हाथ में है कि हमें कैसी सोच को लीड करना है, कैसी सोच को कैरी करना है, कौन से बिलीफ हमने कैरी करने हैं. और आई थिंक कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम हमें और हमारी लाइफ और हमारे आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी मतलब उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं इमीडिएटली. तो जैसे ही हम चक्रा अलाइनमेंट पर काम करते हैं, थॉट्स ऑटोमेटिकली अलाइन होने लग जाती हैं. या फिर जो चक्रा मेडिटेशन या चक्रा की नॉलेज में नहीं है और अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग में है तो उनके चक्रास ऑलरेडी अलाइन ही रहते हैं. So that's a very wonderful insight, Tushar. I want to thank you for that, and thank you everyone, to all the participants. I mean, whosoever took out time from their busy schedules and to attend this session. Thank you so much. Thank you. That was a lovely session indeed. Yeah, Thank you thank so you. much, Sunaina, for these lovely words. You have always been a great support for me. I know that. Thank you, thank you, thank you so much. And thank you so much, everyone. Thank you, everybody, for थैंक यू तुषार participating. जी. एक दो लाइन में ऐड करूं जी, please, चक्रास. please go ahead. Please, please. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया. जो बीज मंत्र थे, लम वम रम और यम हम, तो उसमें जो ये बीज मंत्र का साउंड है, अगर आप जो जैसे रूट चक्र पृथ्वी तत्व है उसमें, तो आप धरती पर लेटकर, कभी जैसे पहले के लोग धरती पे ही सोते थे, आप ध्यान से सुनोगे ना, जब पूरा वातावरण शांत होता था तो वो धरती के अंदर से लम का ही साउंड आता है. फिर जैसे Sacred. जो सेकंड चक्र था, वो उसका तत्व पानी का है, वाटर का.
जी तो आप जब वाटर के समुद्र के पास में खड़े रहते हैं ना, तो उन लहरों में से भी वही आवाज वम वम का साउंड आता है। तो चक्रों का और साउंड का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। आग को कभी जलते हुए देखोगे और शांत जगह में सुनोगे ना, तो वो जब जलती है तो उसका साउंड भी रम 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 ऐसा होता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कभी थोड़ा सा और ऐड करके पूरा श्योर आपको कर, श्योर श्योर अभी थैंक शायद टाइम हो गया है। हम आपने तो वीडियोस बहुत ही हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो 1 घंटे में यस, कोई अच्छा बात सिखा नहीं, सकते थे हम, इसलिए मैंने आपसे परमिशन ली। है नेक्स्ट ना? टाइम जब भी ऐसा होगा तो 10 मिनट में चक्रास में और कुछ ऐड कर लूंगी, जो जो या मुझे। Yeah, Vidyashri, I'll just put it. I'll connect with you. I'll DM you the Bij mantras and the meditation which we have with the Bij mantras. So don't worry, I'll connect with you. If you are not a part of InSync Mindset, I've shared the link in the message in the chat. So you can connect with us, and you are there with the Sheetal. Yes, yes. Okay, So right. I just joined the group before entering to this call. Oh, great. Oh, great. So I'll connect with you in that case. Right. Sure, sure. Thank you. Thank you. And as the ritual goes with InSync Mindset, that we conclude our session with the concluding prayer. Let's join our hands together. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् ओम शांति 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 Thank you so much everyone for joining, for coming, participating. Shubhratri, good night, and I love to see you in the next session with Sheetal on tarot card reading. Thank you so much, and please again just place an order for Power of Now, which we are going to start next week Monday onwards without any failure, and it will go for in both the languages, in Hindi and English as well. And I request you spread a word about it, bring more people for this book reading session. And thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Tushar, Thank you, Sunaina, Thank Tushar. you. Bye-bye. Good night, Thank you. everyone. Bye. you. Good night, and Shubhratri. everyone.